Hello students. So let us start from where we left. We are into the chapter of haloalkanes and haloarenes. In this chapter we understood that how the halogen compounds are basically classified. That was we understood that mostly depends upon their halogen, you can say the carbon's petal arrangement. Like we understood that how the carbon of sp3 arrangement is bonded with the x, that where x could be or any of the halogen, like it could be fluorine, it could be your chlorine, bromine and iodine, right? So a lot of things that we learned. Then we learned that how primary, secondary and tertiary haloalkanes are classified: 1 degree, 2 degree, 3 degree basically. Then we understood what alkyl halides are, what benzyl halides are and propagyl halides are, right? Then we went to the compounds containing carbon of sp2x arrangement, and then we also learned the, you can say, carbon of sp2x arrangement and the carbon of spx arrangement. So once we were done with all of this, we simply went ahead. That was nomenclature. So let us start from where we left, that is nomenclature of haloalkanes. So I'll be writing as nomenclature. So nomenclature is of two types basically. The first one being the common system and the second one being the IUPAC. This stands for International Union of Pure and Applied Chemistry. So haloalkanes are classified in two systems. The one is known as common system. So common system classifies something like this. They have a prefix which is mostly, you can say, N. This is one type. The other prefix is iso and the other prefix is neo. So they use this prefix to classify your haloalkanes. So let me just explain you how and what it is. See, according to the common system, the alkyl halides are named as the halides of the corresponding alkyl groups. Okay. Uh, Basically what it means that the common name of alkyl halides are two worded names. The common system usually gives two words to specify or classify, you can say, a haloalkane, right? The name of the alkyl group followed by its fluoride, right? Whatever it could be, like followed by fluoride, chloride, bromide, iodide, depending on the nature of the halogen, whatever halogen it is. So first is the alkyl group and other is the halogen. So they use these two groups, right? For example, like if I have to share you an example, so if I take CH3I, this CH3I, this will be named, first will be its you can say alkyl halide. What it is methyl, right? So this will be named as methyl and followed by its, you can say, halogen, which is what, iodine. So it will be methyl iodide, right? So this is how you will be classifying according to the common system. The other example would be C2H5 and followed by any halogen, that would be chlorine. So how will you classify this? This could be like this has to be ethyl chloride, right? Talking about the prefixes, it has three prefixes that follow over here. Now when is n used? N is used when the group is continuous, like you can say something like this: CH3 followed by CH2. Oh, just a second. Okay, yeah, just a second, I just lost my pen. CH3, CH2. Okay, yeah, CH2. Anything like this, maybe like an N propyl. Now why N? Because this is a continuous chain. For example, like you can say CH3, CH2, 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 continuous chain, followed by, you can say, N butyl, right? When is ISO used? No, ISO is used when there is one linkage, and this linkage is on the second last carbon. Like for example, if there is CH3 followed by one more CH2, followed by, there will be a chain like this,
Now if there is a CH3 attached over here, like this is not a single chain that we are following now. The chain has changed now, right? So this will become CH1, and here will be what? Your isopropyl. Now remember how the word comes iso, because this type of compound has one linkage to it. Now where will neo be used? So neo will be simply used where you will have double linkage on the second last atom. Now it could be, you can say, CH3. Now if this is your you can say CH, it will be just C, because there are double linkage now over here. CH3, CH3, followed by you can say neo pentyl. 1 2 3 4, right? So this is you can say something like a neopentyl group. It will have a CH2 attached over here and on it. So just let me can I just clear out all the drawings at once? I'm just trying to figure it out. Okay. Right. So just to once again classify what is a common system. So common system is basically classified into, you can say the first one is I'll just say the prefix, that is N, and then there is prefix iso, and then there is prefix what? Neo. So what does N means? N means that there is just only one single chain, right, to which there is no branching. Example I shared was, you can say, like CH3, CH2, CH2, followed by your N propyl. Okay. Now what iso means? Iso means that your second last carbon has one branching, that is CH3, CH. This is the branching, CH3 followed by isopropyl. Now what would neo mean on the other hand? Neo would mean that there are double branching. That would mean CH3, your second last carbon has double branching, CH3, CH3, followed by your CH2, and then linked to neo, you can say pentyl. Okay. So this is all about it. The you can say the standard common classification. Let us jump to something known as your IUPAC system. So the IUPAC system basically means the International Union of Pure and Applied Chemistry, how they classify. Just the way you learned the common system, there is this another system of classifying them known as the IUPAC system. Now this is a very simple and straightforward way to classify. In this system, the name of alkyl halide is obtained, by attaching a prefix such as any of your halogen, that could be fluoro, chloro, bromo, iodo, before the name of the parent alkane. Like this is how you classify it. To you just prefix your halo alkane. You can say like halogen, which could be fluoro, chloro, bromo, iodo, anything you could use it before the parent alkane. In case of complex derivatives, the position of the halogen atom is indicated by the by numbering the carbon chain starting from one end, so that the halogen atom gets lowest possible number. So what do I basically mean by that? So let's try to analyze it, that what do I mean by that. So first of all, you see कि कोई भी आप compound ले लो, सबसे पहले what IUPAC means over here is that CH3 CH2 Br.
Now there is no system like prefix n, iso, neo, ये सब यूज नहीं करना है. IUPAC सिस्टम क्या बोल रहा है कि simply just look at the halogen attached to it. This is Br, right? So it is known as nothing but you can say bromoethane. Not talking about the second thing जो मैंने आपको बताई थी कि in complex derivatives the position of halogen atom is indicated by numbering the carbon chain starting from one end to other end. तो पहले चीज़ को समझो कि हम पहले कर क्या रहे हैं. We are numbering the you can say chain. यहाँ पे CH3 CH Br CH3 ये अगर हम एक कंपाउंड ले लें, सो यू विल हैव टू नंबर कि ये 1 ये 2 ये लाइक 3, ये तो चेन मतलब अलग हो गई. लाइक एक सिंगल चेन को आपको नंबर करना है 1 2, ठीक है. इसमें ये ब्रोमो किस पे अटैच्ड है? सेकेंड नंबर ऑफ कार्बन पे अटैच्ड है. तो यहाँ पे आपको लिखना है सेकेंड ब्रोमो प्रोपेन. ये सिस्टम है IUPAC सिस्टम. पहले व्हाट डज द सिस्टम सेज दैट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नेम द अल्काइल हैलाइड बाय अ प्रीफिक्स ऑफ द हैलोजन. ठीक है, आपको प्रीफिक्स हैलोजन करना है नेमिंग के लिए. हैलोजन, ओके. सेकंड, कॉम्प्लेक्स डेरिवेटिव्स के अंदर नंबरिंग करनी है. नंबरिंग कंपलसरी है. हम एक और एग्जांपल अगर देखें, सो यू सी मिथाइल प्रोपेन, दिस पर्टिकुलर थिंग विल बी लाइक व्हाट, CH फॉलोड बाय CH3 3 टाइम्स. दिस इज मिथाइल प्रोपेन. तो अगर इसको अगर मैं ऐसे लिखूं करके इन द फॉर्मूला स्ट्रक्चर, इट वुड बी CH3 अटैच टू 1 CH3 अटैच्ड ओवर हियर एंड 1 CH3 अटैच्ड ओवर हियर करके. ठीक है, so this is one general structure that follows. अब इसके अंदर क्या है कि instead of taking this CH3 we are attaching a chlorine over here. तो यहाँ पे अगर हम इसको ऐसे कर दें कि ये 2 हो जाए और ये Cl हो जाए. So now what you have to do is कि सबसे पहले आप नंबरिंग देखो कैसा है कि आप यहाँ से स्टार्ट करो 1 2 3. so what you will name it as, you will say 1 पे अटैच्ड है आपका क्लोरो, ओके, CHLORO क्लोरो, followed by 2 मिथाइल प्रोपेन. कहाँ पे है ये वाला कंपाउंड 2 पे. सो दिस आर फ्यू एग्जांपल्स जिस तरीके से आपको इसको नेमिंग करना है. सो वंस अगेन आई विल गिव यू वन जिस्ट एंड समरी कि IUPAC सिस्टम के अंदर नेमिंग होती है आपके हैलोजन को देख के, जैसे CH3 CH2Br. ये सिंपल कंपाउंड है, तो इसको आप लिखोगे ब्रोमोइथेन. अगर चेन्ड है, हम डेरिवेटिव किसको बोलेंगे? जो चेन्ड हो उसको हम थोड़ा मतलब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलेंगे. तो उसके लिए आपको सबसे पहले नेमिंग देखना है एंड देन यू हैव टू नेम इट लाइक दिस 2 ब्रोमो प्रोपेन. ठीक है, वन मोर एग्जांपल, जैसे आपका CH3 CH2 हो गया, ओके, 3 2 1. यहाँ पे आपने क्लोरीन लगाया हुआ है CH3. दिस वुड बी 1 पे है क्लोरीन, 1 क्लोरो, एंड 2 पे आपका है मिथाइल प्रोपेन. सो दैट्स इट. नेमिंग को इतनी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट नहीं है, इज जस्ट अ थ्योरी पार्ट जो आपको याद रखना है कि द फर्स्ट इज नोन एज योर कॉमन सिस्टम एंड द कॉमन सिस्टम यूजेस व्हाट, लाइक इट यूजेस प्रीफिक्सेस एंड डिपेंडिंग अपॉन द टाइप, वो सिंगल कंटिन्यूस चेन है तो N लगाओ. अगर सेकेंड लास्ट कार्बन पे एक ब्रांचिंग हो रही है तो गो विद आइसो, एंड अगर डबल ब्रांचिंग है तो गो विद नियो. IUPAC सिस्टम क्या बोलता है कि जो भी आपका हैलोजन है उसको प्रीफिक्स कर दो फ्लूरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, राइट. एंड डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर, अगर थोड़ा कॉम्प्लेक्स का है आपका कंपाउंड तो आपको कहाँ पे वो हैलोजन अटैच्ड है वो आपको नंबरिंग देनी है. लाइक
सेकंड नंबर पे आप ये डायग्राम में बता भी रहे हो कि 1 2 ऐसे बता रहे हो आप, जैसे यहाँ पे 1 2 3 बता रहे हो, तो यहाँ पे आप बता रहे हो 1 पे क्लोरीन है, ठीक है, एंड 2 के ऊपर मिथाइल, ये रहा मतलब उसका CH थ्राइस का ये रहा सेकंड नंबर पे, ये CH है, जैसे आप बता सकते हो। तो दिस इज यू कैन से वन सिंपल वे टू डू दैट। हम थोड़ा और एग्जांपल्स देख, सो लेट अस गो दिस वे कि हम यहाँ पे लिखते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला। ओके, यहाँ पे हम लिखते हैं कॉमन नेम। ओके, यहाँ पे हम लिखते हैं IUPAC नेम। ओके, अरे बाप रे, ये पेन की आदत डाल रहा हूँ मैंने, मेरा पेन चेंज किया है रिसेंटली। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ CH3Cl, CH3CH2Br, CH3CH2CH2I, CH3CHBr, CH3। हाँ, ये अब हम देखते हैं थोड़ा, एक और थोड़ा कॉम्प्लेक्स में से ले लेता हूँ, CH3CH2Cl, ठीक है। तो यहाँ पे इसका कॉमन नेम क्या आएगा? तो कॉमन नेम के लिए पहले आपको देखना है कि ये अल्काइल ग्रुप कौन सा है, तो ये है मिथाइल, तो यहाँ पे आपको लिखना है मिथाइल साथ में क्लोराइड। उसी तरीके से ये अल्काइल ग्रुप क्या है, ये है इथाइल, तो आपको लिखना है यहाँ पे इथाइल, फॉलोड बाय क्या लगा साथ में, ब्रोमीन, तो ब्रोमाइड। साथ ही में हम IUPAC देखते चलेंगे। सो यहाँ पे कौन सा हैलोजन ग्रुप अटैच है, दैट इज क्लोरो, सो क्लोरो मीथेन। दिस चार्ट विल गिव यू लिटिल बेटर आइडिया कि कैसे दोनों कंपेयर हो रहे हैं। दिस इज ब्रोमो व्हाट इथेन, परफेक्ट है ना। तो उसी तरीके से आपको यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे जब आप इसकी नेमिंग कर रहे हो, सो नाउ लुक ओवर हियर, ये चेन है, CH3 CH2 CH2, ये चेन है, तो यहाँ पे आएगा N, ये वर्ड नहीं भूलना है, N आएगा, N प्रोपाइल, ठीक है ना। साथ में क्या लगा है, आयोडीन, तो आयोडाइड। यहाँ पे आप देखोगे तो 1 पे आपका अटैच्ड है आयोडीन, तो 1 आयोडो प्रोपेन। ओके, यहाँ पे अगेन आप अगर चेक करो तो CH3CHBr CH3, तो यानी कि Br अब बीच में आ रहा है, यानी कि ये क्या है, ये सिंगल लिंकेज है, तो आइजो, आइजो, ठीक है, आइजो लगाना है आपको, फॉलोड बाय व्हाट, प्रोपाइल, ब्रोमाइड, वेरी गुड। वहीं यहाँ पे क्या लगेगा, 2 पे है आपका ब्रोमीन, तो 2 ब्रोमो प्रोपेन। इस स्ट्रक्चर को जब आप देखो तो यहाँ पे भी सिंपली दिख रहा है कि सेकेंड लास्ट से ब्रांचिंग है, तो आइजो ब्यूटाइल क्लोराइड। यहाँ पे क्या है कि फर्स्ट के ऊपर क्या लगा है आपका क्लोरीन, तो 1 क्लोरो, सेकेंड पे है ब्रांचिंग, दैट इज व्हाट, मिथाइल प्रोपेन। सो आई होप आपको थोड़े आइडियाज आ रहे होंगे कि कैसे सॉल्व करना है इस पूरे स्ट्रक्चर को। तो एक और एग्जांपल ले लूँ मैं, मतलब जितने एग्जांपल लें बेहतर ही है। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ CH3
कार्बन CH3। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप लोग आंसर खुद से दे पाओगे कि ये कितना सेकेंड लास्ट पे कितनी लिंकेज है। यहाँ पे डालता हूँ CH2 CH2Cl। तो यहाँ पे कॉमन नेम देना है, यहाँ पे IUPAC नेम देना है। तो इसका कॉमन नेम होगा नियो। करेक्ट गेस किया आपने, पेंटाइल क्लोराइड। ठीक है ना। उसी जगह पे अगर इसका हम IUPAC नेम देखेंगे तो फर्स्ट पे आपको लिखना है क्लोरो, और 3 पे आएगा आपका मिथाइल ब्यूटेन। ओके, देखो ये रहा ना फर्स्ट, ये रहा सेकंड, यहाँ पे थर्ड, तो थर्ड के ऊपर मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, और ये फर्स्ट के ऊपर आपका क्लोरो। सो आई होप दिस क्लियर्स योर way of you know like classifying or naming the alkyl halides. So once we are done with the nomenclature, हम आते हैं कि of the nomenclature of you can say your haloarenes. So haloarenes का classification काफ़ी simple है. Let's talk about it. कि these compounds are named by adding a prefix. आप simply बस prefix add कर दो halo का, that is could be fluoro, chloro, bromo, iodo before the aromatic hydrocarbon के नेम के साथ। ठीक है, सो जैसे लेके एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं करके कि यहाँ पे ऐसे देखते हैं हम, ये मैंने एक एरोमेटिक रिंग बनाई, मैंने लगा दिया F, तो ये क्या हो गया, फ्लोरोबेंजीन। ठीक है ना। वहीं पे अगर मैं F की जगह पे क्या लगा दूं, Cl लगा दूं तो क्लोरोबेंजीन, Br लगा दूं तो ब्रोमोबेंजीन, I लगा दूं तो आइडोबेंजीन। ठीक है। नाउ इन ऑर्डर टू नेम डिस्ट्रीब्यूटेड कंपाउंड्स, द प्रीफिक्स यहाँ पे यूज होता है खाली एक के ऑर्थो, मेटा या पैरा। हम वो टाइप से हम डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं कि किस तरीके से आपके जो रिलेटिव पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन हुआ है वो कैसे हुआ है वो बताने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले एक आप चीज़ याद रखो, मैं आपको बहुत सिंपल में बता दूंगा सब्स्टिट्यूशन को याद कैसे रखना है। यहाँ पे देखो मैंने एक बना ली अपनी एक एरोमेटिक रिंग, इसकी पोजीशंस को यहाँ पे हम इंडिकेट कर देते हैं 1 2 3 4 5 6। तो जब आपकी 1 2 पोजीशन यूज हो रही है तब आपको प्रीफिक्स लगाना है O, विच मीन्स व्हाट, ऑर्थो। जब आपकी 1 3 पोजीशनिंग यूज हो रही है तब आपको लगा देना है प्रीफिक्स M, विच मीन्स व्हाट, मेटा। जब आपकी 1 4 पोजीशनिंग यूज हो रही है तब आपको लगा देना है P, विच मीन्स व्हाट, पैरा। ठीक है, यहाँ पे हम इसका भी एग्जांपल भी ले लेते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर ऐसी अरेंजमेंट आ रही है कि यहाँ ये 1 पोजीशन पे क्लोरीन है, ये 2 पोजीशन पे क्लोरीन है, तो इसका नेमिंग आप कुछ इस तरीके से दोगे। 1,2 पोजीशन है पहले तो वो बताओगे और लिखोगे डाई क्लोरो, 2 बार क्लोरीन है ना, तो डाई क्लोरो बेंजीन। ठीक है, उसी जगह पे एक और एग्जांपल अगर आप देखना चाहो तो जैसे अगर एक आपकी ये एरोमेटिक रिंग है, यहाँ पे एक क्लोरीन है एंड यहाँ पे एक क्लोरीन है, तो ये किस तरीके की अरेंजमेंट है, करेक्ट 1 3। तो यहाँ पे क्या लगेगा, प्रीफिक्स M। अच्छा, यहाँ पे इसको अगर प्रीफिक्स के हिसाब से लिखना चाहो ना तो यहाँ पे O लिखना है, O डाइक्लोरो बेंजीन। वो तो मैंने आपको समझाया ऐसे 1 2 लिख के। आपको याद रखना है कि आपकी जो अरेंजमेंट है
वो प्रीफिक्स के हिसाब से आपको बतानी है। एक सेकेंड, ये रिकॉर्डिंग स्क्रीन हिल गई थोड़ी, इसको एडजस्ट कर दूं, हाँ ठीक। उसी तरीके से यहाँ पे आपको याद रखना है कि यहाँ पे किस तरीके की अरेंजमेंट यूज हो रही है, तो एम यूज हो रहा है, तो एम लिखना है, साथ में नाम तो वही रहेगा, डाई क्लोरोबेंजीन, ठीक है ना। तो उसी तरीके से हम कोई दूसरे एग्जांपल लें, जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कुछ इस तरीके से। अब आप लोग आंसर देना इसका, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, वेटिंग फॉर योर आंसर्स। यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, इसका नाम क्या आएगा, चलो जल्दी से बता दो, वेरी गुड, पी डाइक्लोरोबेंजीन। तो इनकी नेमिंग यहीं पे ख़त्म होती है आपके हेलो अरेंज की। बड़ी सिंपल है कि जो भी हेलो लगा है उसको प्रीफिक्स दे दो और नाम दे दो। तो यहाँ पे मैंने आपको रेड इंक में जो आपको जो दिख रहा है यहाँ पे, ये नेमिंग करने का स्टाइल है। और फिर किसी अरेंजमेंट आप जब देखते हो तो उस हिसाब से आप ये प्रीफिक्स लगाते हो, ठीक है, अगर एक से ज़्यादा लिंकेज है तो दिस इज़ ऑल अबाउट द लिंकेजेस। तो अब हम अगर बात करें आइसोमेरिज्म के ऊपर कि आइसोमेरिज्म कैसे आता है इनके अंदर, तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग को थोड़ा एक ये आइडिया रहे कि आइसोमेरिज्म होता क्या है। तो आइसोमेरिज्म एक फिनोमिनन है कि जहां पे मोर देन वन कंपाउंड का सेम केमिकल फार्मूला होगा। तो मैं यहाँ पे कीवर्ड्स लिख दूं, मैं क्या कह रहा हूँ, दैट वुड बी मोर देन वन कंपाउंड विल हैव सेम केमिकल फार्मूला। तो फर्क क्या हो गया, सेम केमिकल फार्मूला, फर्क आ गया, बट दे हैव डिफरेंट केमिकल स्ट्रक्चर। ये होता है आइसोमेरिज्म ना। आइसोमेरिज्म काफ़ी टाइप्स में क्लासिफाइड है, लाइक अगर इसका हम टाइप स्टडी देखना चाहें तो जैसे आइसोमेरिज्म के आपके मोर देन वन कंपाउंड का सेम केमिकल फार्मूला होगा बट उनका स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट अलग होगा। तो यू कैन से स्ट्रक्चरल नहीं, मतलब केमिकल अरेंजमेंट, जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो अलग होगा। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज स्ट्रक्चरल, दूसरी क्लासिफिकेशन है स्टीरियोटाइप। स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है कि जो फंक्शनल ग्रुप होता है ना, एंड द एटम्स इन दिस मॉलिक्यूल्स आर लिंक्ड इन डिफरेंट वे, दे मे नॉट कंटेन अ सेम फंक्शनल ग्रुप। ये आपको याद रखना है। इसमें पहला टाइप है चेन आइसोमेरिज्म। क्या होता है, इनमें फंक्शनल ग्रुप और एटम्स इन दिस मॉलिक्यूल जो हैं उनकी लिंकेज अलग तरीके से होगी। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं चेन आइसोमेरिज्म का लूँ तो हम लेते हैं एक CH3 CH2 CH2 Cl। ध्यान देना यहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं, C4H9 Cl। देखो, एक क्लोरीन, दो क्लोरीन, सॉरी तीन कार्बन, तीन कार्बन हो गए यहाँ पे, ठीक है। एंड ओहो एक गड़बड़ कर दी मैंने, यहाँ पे चार कार्बन डाले हैं, तो CH2 और फिर Cl। तो यहाँ पे अब चार कार्बन आ गए, ठीक है ना। अब आप काउंटिंग भी देख सकते हो इसकी, ये आपका एक कार्बन, ये दो कार्बन, ये तीन कार्बन, ये चार कार्बन, ठीक है। एक क्लोरीन आ गया, 9 हाइड्रोजन चाहिए, तो 3 हाइड्रोजन यहाँ आ गए, दो यहाँ पे 5, दो यहाँ पे 7, दो यहाँ पे, हो गए 9, ठीक है। तो हम ये चीज़ों पे ज़रा ध्यान रखेंगे कि CH2 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 Cl, ठीक है। ये आपकी एक लिंकेज है। इसको आप क्या बोलोगे, वन क्लोरो। देखो अभी फर्स्ट कार्बन के हिसाब से आप ये क्या कर रहे हो, आप IUPAC सिस्टम दे रहे हो, वन क्लोरोब्यूटेन। IUPAC के हिसाब से मैंने नाम लिखा है, वन क्लोरोब्यूटेन। इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, CH3 CH CH2 Cl, और यहाँ पे मैं अटैच कर दूंगा CH3। तो देखो 1 2 3, नंबरिंग दे दो पहले। अब क्या लिखोगे आप, 1 पे है आपका क्लोरो, 2 पे है मिथाइल प्रोपीन। तो ये दोनों क्या है एक दूसरे के, ये दोनों जो हमने ऊपर नेम दिया और जो नीचे नेम दिया, ये दोनों क्या हैं, ये आइसोमर्स हैं। किस टाइप के, चेन टाइप के, ठीक है।
इसी तरीके से हम देखते हैं सेकेंड अरेंजमेंट, जिसको हम बोलते हैं सिंपली आपका पोजीशन आइसोमेरिज्म। सेकेंड टाइप देख रहे हैं हम स्ट्रक्चरल का, पोजीशन आइसोमेरिज्म। ये टाइप अराइज होता है ड्यू टू डिफरेंट पोजीशंस ऑफ द सेम हैलोजन एटम इन यू कैन से द सेम चेन। कैसे हम देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पे मैंने लिया CH3 CH2 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 Cl। तो अगेन इसका नेम क्या होगा, वही पुराने वाला 1 क्लोरो ब्यूटेन, 1 क्लोरो ब्यूटेन। उसी तरीके से मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ CH3 CH2 CH CH3 Cl। कोई भी स्ट्रक्चर मतलब अरेंजमेंट हो सकती थी ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेकंड के ऊपर क्लोरो है, क्लोरोब्यूटेन। ये दोनों क्या है, एक दूसरे के आइसोमर्स। उसी तरीके से स्टीरियोटाइप में हम देख रहे हैं, एक टाइप देख लेते हैं ऑप्टिकल isomerism या optical isomers. You know, this type of isomers arise in the compound having same chemical formula but orientation of the atoms belonging to the molecule in 3D space is different, मतलब एकदम optically arranged हो जाते हैं। इसका एक सिंपल एग्जांपल अगर मैं आपको दे दूं तो ये NH2 CH3, यहाँ पर अगर मैं इमेजिनरी मिरर ले लूँ तो इसकी अरेंजमेंट एग्जैक्टली उल्टी हो जाएगी। इट वुड बी H2NC linked with a hydrogen COOH। दिस इज ऑप्टिकल। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है आइसोमेरिज्म का। आइसोमेरिज्म मतलब बेसिकली क्या, कि मोर देन वन कंपाउंड हैविंग सेम केमिकल फार्मूला, केमिकल फार्मूला सेम रहेगा, जैसे C4H9Cl फार्मूला यही रहेगा, बट अलग 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 अरेंजमेंट्स में वो एग्जिस्ट कर सकता है, तो उसको हम आइसोमर्स बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे ये आधे घंटे के लेक्चर के अगर निचोड़ देखना चाहें हम, तो हमने अब तक हेलो अल्केन्स और हेलो अरीन्स के अंदर हेलो अल्केन्स की क्लासिफिकेशन देख ली है, डिपेंडिंग अपॉन देयर स्पेटल अरेंजमेंट ऑफ द कार्बन, CsP3 के हिसाब से, CsP2 के हिसाब से और CsP के हिसाब से। हमने आज नॉमेनक्लेचर देख लिया कि कॉमन सिस्टम क्या होता है, IUPAC सिस्टम क्या होता है। ठीक है, हमने हेलो अरेन्स की क्लासिफिकेशन देख ली है कि आपको बेसिकली बस क्या करना है कि प्रीफिक्स कर देना है हेलो, दैट कुड बी फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो, इस हिसाब से। और अगर आपकी अरेंजमेंट जो है वो ऑर्थो मेटा पैरा के हिसाब से है, तो आपको वो प्रीफिक्स लगा देना है। ठीक है, इसके बाद हमने आइसोमेरिज्म पढ़ लिया। ठीक है ना, अब हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पे आपको थोड़े बहुत जो क्वेश्चंस जो हमने अब तक पढ़ा उस पर जो एक्सपेक्टेड हो सकते हैं वो ये हो सकते हैं कि जैसे आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है, MCQ टाइप में आता है